माधवी लता जी, टाइम्स नाउ में आपका बहुत स्वागत है। मैं आपसे शुरुआत में यह पूछना चाहता हूं, व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस कंट्रोवर्सी where Andhra Chief Minister has gone on record to say that animal fat was used in the Tirupati Prasadam? The first thing that I would want to tell that Chief Minister Mr. Chandrababu Naidu ji is a responsible leader. Let's all talk it more on a common sense. Do you think in 100 days period, just walked in Chief Minister would come up with an allegation which isn't true? I'm sure. Definitely not. No amateur Chief Minister would do that. And people have to know across the country one thing. He belongs to a party called Telugu Desam. And Telugu Desam party, legend, creator, father, stalwart, the veteran actor, N.T. Ramarao ji, during his regime of United Andhra, was the first person ever to make provision of 34 rooms for poor, old, and mothers feeding babies to halt there before going to Venkateshwar Swami, rather just to stand in the line for hours together. And he was the same person who also started free food for the devotees who come to Tirumala. And is the same person who has also organized the giving away of the hair, which we call as a Tala Neelalu. That means we give away like an, sacrificing or giving away the hair to the god, which has been properly put under a monetization style, and so that it goes back to the fund as Tirupati. And Chandrababu Naidu ji hails from one party like that. So any case, it doesn't make any sense that he has to come up with a paper like this, because if it is slightest wrong, don't you think he doesn't know the repercussions? Because he didn't raise a scam. Right. So you suggest that he has credible information, which is why a scam of Hindutva. Right. Where not just 120 crores of Bharat, but the entire world Hindus make it a point at least in a year once they come and see the Lord Venkateshwara. Right. Madhvi Lata ji, I want to understand from you, jab aapko pata chala, when you got to know of this controversy that in the prasadam which is offered to the deity and then given to the devotees, isme beef fat hai, pig fat hai, fish oil hai, what did you think? How did you react? ऐसा लगा मेरे अंदर एक वॉल्केनो बर्स्ट हो गया है। ऐसा लगा शायद पानी के आंसू ने खून के आंसू बहना चाहिए था मेरे अंदर। ऐसा लगा कि मैं खाई हूं इसलिए मुझे दुख नहीं है, मेरा वेंकटेश्वर स्वामी मेरा भगवान को कैसे चढ़ा दिए इसको। इतना गुस्सा आया कि इसी का 2 लाख लड्डू अयोध्या भी पहुंचा ना। ये बताइए, अरे हम तो वैसे चिल्लाएंगे, अरे भगवान क्या किया इन लोगों का। लेकिन एक बात बताने दीजिए आपको, रामचंद्र जी का अयोध्या में यूं ही मूर्ति नहीं बिठाया गया है। रामचंद्र जी का सही में प्राण प्रतिष्ठापन हुआ है, क्योंकि त्रेता युग में यही रामचंद्र जी विश्वामित्र जी के बात पर कहने पर गए थे सप्त महर्षियों का कल्याण के लिए। जब हवन कर रहे थे, ताटकी मारी जो सुबह होने वहां पर मांस हड्डी और खून डाल रहे थे महायज्ञ में, उनका संहार किया रामचंद्र जी ने। मैं कहती हूं ये अभी भी यही हो रहा है। इतने सालों से नहीं पता क्या कर रहे थे ये लोग। जिस साल रामचंद्र का प्राण प्रतिष्ठापन हुआ वहां पे लड्डू गया है ना, बाहर खुल के आ गया है सच्चाई। देखते हैं ना, ये सनातन हिंदू का धर्म का युद्ध शुरू हो गया है। यहां पर कुरुक्षेत्र शुरू हो गया। यहां पर एक हिंदू का आस्था को अपने ललकारा है। बात हम खाने का नहीं है लड्डू, भाग भगवान को चढ़ाने का है। Madhvi Lata ji, you are calling it a you are calling it a dharma yudh, but there are many in the opposition ranks who are part of a larger ecosystem who believe that this is a publicity stunt. कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इसमें कोई सत्य नहीं है, ये सब ऐसे ही पब्लिसिटी स्टंट के लिए किया जा रहा है। तो आपको किस बात की डर है? रहने दीजिए पब्लिसिटी का स्टंट, आपको क्या लेना देना है? आप चुप बैठो, चलने दो सीबीआई का इंक्वायरी। पानी का पानी दूध का दूध बन जाएगा, निकल जाएगा उसके अंदर से। जब गलती नहीं किया हो तो आप
तो क्यों दे रहे हो इस प्रकार की स्टेटमेंट? क्यों रोक रहे हो आप? आपने कुछ नहीं किया ना, तो चुप बैठो। गवर्नमेंट को काम करने दीजिए, सेंटर को अपना काम करने दीजिए, सीबीआई इंक्वायरी करने दीजिए। मजाक होगी आप लोगों को? आप जो मन में स्कैम करते रहेंगे। हिंदुत्व के तरफ आकर स्कैम करने की कोशिश भी की ना, अब हिंदू चुप नहीं बैठेगा। जीतते हम हिंदू की वजह से ये लोग। अब ये बाहर निकल चुका है। नहीं, हिंदू अब चुप CBI नहीं बैठेगा। होना ही पड़ेगा। नहीं, आप कह रहे हैं हिंदू चुप नहीं बैठेगा, एक तो इसका क्या मतलब है वो, और पवन कल्याण जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है आंध्रा के, ही इज मेड अ डिमांड मैम, ही सेज दैट देयर शुड बी एट द नेशनल लेवल अ सनातन रक्षा बोर्ड। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? सही तो कह रहे हैं ना। अरे जब सरकार ही प्रजा का दुश्मन बन जाए, प्रजा का आस्था का दुश्मन बन जाए, अब प्रजा कहां जाकर बोलेगा? खास कर हम हिंदू, हमारे लिए तो राज्यांग में भी, कॉन्स्टिट्यूशन में भी तो अन्याय हो गया। हम तो एंडोमेंट के नीचे दब पड़े हैं। इसीलिए हम एक ही बात कह रहे हैं, जो पवन कल्याण जी ने कहा वो सच कहा है। और मैं कहती हूं पवन कल्याण जी से इस माध्यम से, और सारा देश से मैं कहती हूं, अपने अपने राज्यों में आप सनातन धर्म का संरक्षण करने के एक संस्था खोल दीजिए, और इन सारे संस्था एक ऐसा एटोनमस स्वतंत्र बॉडी एक देश में बनना चाहिए राष्ट्र के तौर पर, जिससे हम सब लोग जुड़े रहना चाहिए। जब ऐसा किसी भी राज्य के सरकार से हमको अन्याय होता है, तो कम से कम उनके पास तो जाके विनती करें। केस उनको टेकअप करने का तो एक अधिकार होना चाहिए। ये क्या अन्याय है भैया हमारे लिए? अब तो हम ऐसे नहीं बैठेंगे चुपचाप कि हम कमजोर हैं, हमारा आस्था जागृत हो गया है। अब देखना जो होगा सीबीआई इंक्वायरी के बाद होगा। नहीं, सीबीआई इंक्वायरी, ये सिर्फ एक लड्डू की बात नहीं है। बताने दीजिए मुझे आपको, आकाश राज जिनकी बेटी पद्मावती देवी है, जिनका ब्याह यानी विवाह रामचंद्र जी के साथ हुआ, सॉरी वेंकटेश्वर स्वामी के साथ हुआ था, उस दिन से लेकर जब तक आखिरी राज्य हुआ, राजा थे, तब तक कई मुकुट, नहीं ये जो आप बोल रहे हैं ये तो दोनों कई मुकुट, सुनिए, कई मुकुट, जेवरात, हीरे, मोती, कहीं जागा, इतने सारे प्रॉपर्टीज वेंकटेश्वर स्वामी को दिया गया है। अब उनका भी हिस्सा निकलना चाहिए बाहर। कहां गए ये सब? ये छोटी मोटी स्कैम नहीं है भैया, लड्डू से बाहर आया है। भला रामचंद्र जी का, भगवान का, ये बाहर लड्डू से बाहर आया है। अब बाहर निकला तो पूरा तिरुमल तिरुपति देवस्थान मंदिर का सालों से कहां चले गया ये सब? पता है आपको? विदेश चले गए कई मूर्तियां, एंटिक पीसेस, करोड़ों रुपए बना लिए लोग। हम सब जानते हैं सनातनी ये बात। बाहर कैसे लेके आए? आज बाहर निकला। अब ये बहुत बड़ा ये माधवी जी, जो एक लार्जर डिबेट है, लोग ये कह रहे हैं, जो डेवोटीज हैं, सनातन धर्म से जुड़े जो लोग हैं, दे हैव वन डिमांड। दे से that this is not just about one temple, one state. This is about the larger fight that they are having, which is free the Hindu temples. Why should the state control Hindu places of worship? मैं एक बात बताऊं इसके लिए, और एक 16 नवंबर 2023 12:40 पर दोपहर के टाइम पे निकला ये न्यूज, FIR भी बुक हुआ। ये लोग हैं लूथरन चर्च वाले, जो बटग्यासो आंध्र प्रदेश में चित्तूर डिस्ट्रिक्ट के हैं। यहाँ पे वेणुगोपाल स्वामी टेम्पल है, जो स्कंद पुष्करिणी कार्तिकेय नगर में है। यहाँ इस वेणुगोपाल स्वामी माने सिर्फ अगेन महाविष्णु का ही मंदिर, उसके नीचे बैप्टिज्म हो रहा था। FIR बुक है। No. All this is reported. Madhvi Lata ji, I understand your point. I understand your point. Some of what you're saying is widely reported. I want to ask you a fundamental question, ma'am. If you really back the idea of freeing
Hindu temples, that the state should give up control. I have a simple question to ask of you, ma'am. You are a practicing Sanatani. You are in the BJP. What will you tell the Prime Minister? When should this happen? Is it not the right time? Has the faith and have the faithfuls not suffered enough? I think this is the right time, भैया. This is the right time. हम सब सनातनियों को व्हाट्सएप, ईमेल, ट्विटर, इंस्टाग्राम से, अपने प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से अभी रिक्वेस्ट करना चाहिए. मुक्त कर दीजिए हमें, मुक्त कर दीजिए हमें. हमें भी अपने भगवान को संरक्षण करने के लिए अपना सनातन धर्म संरक्षण करने का मौका दे दीजिए. हमारे वजह से राज्य बनते हैं, सरकारें बनते हैं, लेकिन हमको मोहताज मत करिए. दे दीजिए हमें अपने भगवान को. ये कहां सेक्युलर हुआ भैया? हमको नहीं मिलता, किसी और को मिलता है. क्या इसी को सेक्युलरिटी बोलते हैं? सही में सेक्युलरिटी लेके आइए. हम आपके बात चुप बैठने नहीं है. माधवी जी, आपने बहुत बड़ी बात कही है. आपने कहा है कि यही समय है मंदिरों को मुक्त करने का. द स्टेट मस्ट गिव अप कंट्रोल ऑफ हिंदू प्लेसेस ऑफ वर्शिप. You've also said that people should in large numbers appeal to the Prime Minister to do this. Let's hope that the government is listening to this. Let's see what happens from here on. I thank you for joining us on India Upfront. With that, we're taking a short break, viewers. The US edition special broadcast of the News Hour. Navika Kumar is in the United States getting you the latest in the build-up to PM Modi's visit.